Hello and welcome to my YouTube channel Commerce Classes. Before starting this video, I would like to introduce myself. My name is Goswami Jaydutt. I have been teaching at Sarvajanik School since 5 years and my total teaching experience is 5 years. I am a teacher and this channel is specially for the commerce stream student. Here I am going to teach you accountancy, or we can say elements of accounts, statistic, economics and commerce with the help of blueprint, with the help of board pattern. As we know are the familiar word with the coronavirus all over the world, and all the schools are starting their video on YouTube channel or other apps or other website. So I think that I also have to share my video on YouTube channel for my student, especially for the Sarvajanik School. So this video is specially for the commerce stream English medium student, and here I will start first subject of accountancy with the help of blueprint. So let's learn. Thank you. Hello student, welcome to commerce classes. Here I am going to teach you account, elements of accounts. Before starting lessons, I just would like to introduce the specimen of lessons. So here in accounts, two parts will be there, part 1 and part 2. Part 1 you have to learn total 7 lessons, and part 2 you will learn total 6 lessons. So just this index you have to copy in your notebook, in your fair book, right? You have to prepare proper fair book for your board examination. At the time of board examination, you can refer this book. So here lessons are there. Part 1 introduction to partnership, final accounts of partnership firm, valuation of goodwill, reconstruction of partnership, admission of a partner. Lesson number 6, retirement of a partner. Lesson number 7, dissolution of a partnership firm. And part 2, lesson number 1, accounting for a share capital. Number 2, accounting for a debentures. Number 3, company final accounts. Number 4, analysis of financial statements. Number 5, accounting ratios analysis. And number 6, cash flow statement. So this all the lesson you have to copy in your notebook, right, properly, right? So copy these lessons first, pause this video and copy all the lessons. Okay student, hope you copied all the lessons which I instruct you, right? So here next things you have to draw in your notebook the blueprint, right, which is helpful for your board examination. According to this blueprint your paper will be asked in the board examination. So this blueprint is most important for you, right? So here I prepare part 1 lessons, part 2 lessons, right, blueprint, section wise weightage of marks, right? So here 6 section will be there in the examination in your paper: section A, section B, section C, section D, section E and section F, right? In section A, multiple choice question will be there. Section B, 2 short question will be there. Section C, some sums will be there. Example, problem solving method you have to follow in section C. Section D already problem solving. Section E already problem solving. Section F is already problem solving. So here in section A, each MCQ has 1 marks. Section B, right? Section B, each question has 1 marks. Section C, each question has 3 marks. And section D, each question has 4 marks. Section E, each question has 8. And similarly in section F, section F, each question has 11 marks. So your total marks you have to draw accordingly. So here I would like to explain you what is the weightage of lesson number 1, total weightage of lesson number 1, right? So here lesson number 1, which lesson number 1 is introduction to partnership. So your 1 MCQ will be there, 1 mark of 1 MCQ in this lesson. MCQ only asks Short question will not be there in from this lesson, so you don't have to refer short question.
Then from section C you have to calculate short sum, right? So practice it, we will practicing, right? Then section D no question will, section E no question will be there, section F no question will be there. So here total weightage of mark 3 marks of 1 sums and 1 MCQ, 3 plus 1 total 4 marks. So accordingly lesson number 2 here, section A dash, section B dash, section C dash, section E dash, section F, one question will be there for 11 marks, total 11 weightage of this lesson 11 marks. So lesson number 2 is final accounts of partnership firm, right? Final accounts of partnership firm. Lesson number 3 valuation of goodwill, right? 1 MCQ will be there from this lesson, 1 short question will be there. Section C no question will there. Section D 1 4 mark question will be there. So total weightage of this lesson is 6 marks, right? So accordingly you have to copy all these blueprints. तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अभी जो पार्ट 1 जो है हमारे अकाउंट्स के अंदर वो पूरा पार्टनरशिप के लिए कवर किया गया है। उसके अंदर सारे पार्टनरशिप के लिए आपने अगर इंडेक्स देखे होगे, मैंने आपको लिखवाया था सारे जितने लेसन है पार्टनरशिप के। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारे लेसन है वो सारे पार्टनरशिप्स के लिए रिलेटेड है। और फर्स्ट लेसन जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो यहाँ पे अगर हम लेसन को देखेंगे तो पहले माइंड में क्वेश्चन होगा कि लेसन का नाम ही इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ता है लेसन को, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट पार्ट है वो पूरा पार्टनरशिप के रिलेटेड है, ठीक है। कैसे पार्टनरशिप की जाती है, कैसे बिजनेस को आगे ले जाते हैं, पार्टनरशिप के अंदर नए नए कौन से ऐसे लॉज है, कौन से एक्ट है, कौन से रूल्स है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे बिजनेस की गुडविल को बढ़ाते हैं, कैसे पार्टनरशिप करते हैं, कैसे पार्टनर्स को एडमिट करते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। कैसे पार्टनर्स को रिटायर करते हैं, कैसे फर्म को डिसॉल्व करते हैं, कैसे मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स रखते हैं, सारी बात इस लेसन्स के अंदर। तो ये जो है कोई भी चीज़ अगर आप समझते हो तो उसका हमें एक बेस पता होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसीलिए लेसन का करवाते हैं। आप कहीं पे भी जाते हो इंटरव्यू देने तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे कि पहले लेसन को इंट्रोड्यूस करना, दूसरी बात उसको बेस को समझना, तीसरी बात उसके रूल्स रेगुलेशन एक्ट प्रोविजंस कैसे की जाती है पार्टनरशिप, सारी चीज़ के लिए एक इंट्रोडक्शन जरूरी है। कहीं सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अकाउंटेंसी मतलब सम्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो अकाउंटेंसी मतलब सम्स और कैलकुलेशन नहीं, पर अकाउंटेंसी मतलब अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अकाउंट्स को मेंटेन करने की अंडरस्टैंडिंग, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, प्रॉपर मैनर्स, तो उसी को हम अकाउंट्स बोलते हैं। तो इसके अंदर इस लेसन के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे प्रॉपरली 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट, जैसे भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है ऐसे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके अंदर। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी से इस लेसन को इंटरलिंक करना चाहूँगा, तो आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर होगा। तो मैं आपको इसके रिलेटेड, इस लेसन के रिलेटेड एक अच्छी सी स्टोरी जो बिजनेस पर्पस के हिसाब से, ठीक है, जो आपको इजीली समझ में आए। आप नोटबुक में, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा लेंदी एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें आपको उसमें डायरेक्ट दे दिया होता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा लेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे, इलास्ट्रेशन के साथ समझाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आपका ये बेस है, आगे जाके आप बीकॉम करोगे या कोई भी करोगे कोई भी कोर्स, तो उसमें आपको एडवाइजेबल होगा। तो अभी अपनी नोटबुक में लेसन नंबर 1 लिख दो, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अभी मैं आपको समझाना चाहूँगा
इंट्रोडक्शन। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तीनों लोग एक ही टाइप का बिजनेस करते, गारमेंट्स का बिजनेस करते, तीनों लोग गारमेंट, कपड़ों का, ठीक है। ये भी गारमेंट, ये भी गारमेंट, तीनों लोग सेम बिजनेस करते, एक ही मोहल्ले के अंदर, एक ही एरिया के अंदर, और तीनों ने इक्वली कैपिटल लगाई है बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, और बहुत अच्छा बिजनेस तीनों का चल रहा है एक एरिया के अंदर, ए बी सी का। गारमेंट्स का बिजनेस करते, कपड़ों का बिजनेस करते, और बहुत अच्छा बिजनेस उनका चलता है। और तीनों सोल प्रोप्राइटर है, तीनों सोल प्रोप्राइटर है, सेपरेट बिजनेस करते हैं, खुद ही बिजनेस के ओनर्स है, खुद ही बिजनेस को मैनेज करते हैं, खुद ही बिजनेस के अंदर डिसीजंस लेते हैं, खुद ही कस्टमर्स के साथ डीलिंग करते हैं, ठीक है, और खुद ही मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स करते हैं। तो ये तीनों लोग जो है ये सेम टाइप का बिजनेस करते हैं, ए बी सी। अभी मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि ए जो कस्टमर है वो गारमेंट का बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसके पास जितने भी कस्टमर है, मान लो कि उसके पास 50 कस्टमर, इसके पास 100 कस्टमर, 100, और इसके बाद 150 कस्टमर्स हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कस्टमर किसके पास है, सी के पास। उसके बाद बहुत ज़्यादा कस्टमर जाते हैं क्योंकि वो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी इसका गारमेंट देता है, अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है, अच्छी सर्विसेज देता है, अच्छी तरह से उसको ट्रीट करता है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर जाते हैं। तीनों ने सेम कैपिटल लगाई है, बिजनेस के अंदर सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, पर अभी इन दोनों को क्या होता है कि इसका ज़्यादा सी, ए और बी को क्या लगता है कि सी का ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर उसकी लिमिटेड कैपिटल है, बी की, सी की, और बी, ए बी और सी की, तीनों की लिमिटेड कैपिटल बिजनेस के अंदर है। अब ये अकेले बिजनेस करते, इसका मतलब इन सबको खुद का प्रॉफिट अकेले ही शेयर करना पड़ेगा, खुद का लॉस होगा तो खुद को ही शेयर करना पड़ेगा। तो ए और बी ने सोचा कि सी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है, और सी ने भी सोचा कि ये दोनों मुझे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो इन सब ने मिल के ऐसा सोचा कि चलो हम तीनों मिल के एक फर्म बना देते हैं, ए बी सी पार्टनरशिप फर्म। राइट, ए बी सी ने तीनों ने मिल के एक पार्टनरशिप फर्म बना दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा कस्टमर जाते हैं और तीनों कंपटीशन में है गारमेंट्स की। इसके पास कई बार ज़्यादा कस्टमर आपके पास आ जाते हैं बिज़नेस के अंदर, तो आपको बिज़नेस को हैंडल करना एक लिमिटेड हो जाता है। दूसरी बात, आपके पास कैपिटल कम होगी तो कई बार बिज़नेस को हैंडल करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तीनों अगर पार्टनर्स बन जाएंगे एक साथ मिल के, और इक्वल प्रपोर्शन में, या तो 50,000 ये निकालेगा, 50,000 ये निकालेगा, 1,00,000 रुपये निकालेगा, तो तीनों की कैपिटल मिलकर बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो ये पहले क्या थे, सोल प्रोप्राइटर थे, तीनों क्या थे पहले, सोल प्रोप्राइटर, तीनों क्या थे पहले, सोल प्रोप्राइटर। जब भी तीनों ने साथ में सोचा कि चलो हम मिलके एक बिजनेस करते हैं, तो वो कौन सा बन गया, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बन गया। तो जब भी अकेला बंदा कोई बिजनेस करता है उसके अंदर खुद ही ओनर होता है, ठीक है, पर जब साथ मिलके बिजनेस करते हैं, सी ने सोचा कि ए और बी को अडॉप्ट करके हम दोनों आगे एक अच्छी पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, तो जिसमें जितना भी प्रॉफिट होगा हम सब क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इक्वली शेयर कर लेंगे। तो ये चीज़ है एक पार्टनरशिप। तो हम यहाँ पे, यही मेरा कहने का मतलब था, इंट्रोडक्शन करवाने का मतलब, कि तीनों बिजनेस करते थे, पहले सोल प्रोप्राइटर पहले अकेले थे, और उसके बाद तीनों ने सोचा कि अगर साथ में मिलेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस होगा, कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर भी सारे मिलके हमारे पास ही आएंगे। तो सोल प्रोप्राइटर में कहीं सारी लिमिटेशंस होती है, वो पार्टनरशिप में कवर हो जाती है। किसमें हो जाती है, पार्टनरशिप के अंदर, जैसे कि कैपिटल है, मैनेजमेंट है, कैसे मैनेज करते हैं बिजनेस को, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तीनों चीज़ जो है, जो लिमिटेशन सोल प्रोप्राइटर के अंदर है
वो पार्टनरशिप के अंदर कवर हो जाती है, इसीलिए पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। इन शॉर्ट, पार्टनरशिप से पहले होता है कौन सा? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर फॉर्म, जिसके अंदर एक पर्सन होता है, 1%, वही बिजनेस का ओनर होता है। एक पर्सन होता है, वही बिजनेस का ओनर होता है, वही बिजनेस के सारे डिसीजंस लेता है, बिजनेस के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओनरशिप, मैनेजमेंट, डिसीजन, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है, जो सोल प्रोप्राइटर के अंदर होती है, और जो सोल प्रोप्राइटर नहीं कर पाता है उसकी कई सारी लिमिटेशन। उन लोग ने सोचा कि अब मुझे ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बाहर जाओगे कहीं किराने की शॉप पे आप देखोगे तो एक ही बंदा बिजनेस करता होगा, ठीक है। तो छोटा सा बिजनेस होगा तो वो हैंडल हो जाएगा, पर बड़ा बिजनेस है, ठीक है, बड़ा बिजनेस है और कस्टमर बहुत ज़्यादा है और आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो और आपको ज़्यादा उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए एक पार्टनरशिप फर्म आप बनाओगे। पार्टनरशिप, तो जितनी भी लिमिटेशंस है कैपिटल की, फिर मैनेजमेंट की, सारी लिमिटेशन है वो पार्टनरशिप के अंदर कवर होती है, वो मैंने आपको समझाया। तो ये है पार्टनरशिप का इंट्रो। सो हियर वी कैन से दैट द पार्टनरशिप फॉर्म इज इमर्ज्ड फ्रॉम कैपिटल एंड मैनेजरियल लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर फॉर्म। तो ये इंट्रोडक्शन था। आपको इंट्रोडक्शन अपने नोटबुक में लिखना है, ये नहीं लिखना है, मैं आपको नोट के अंदर दिखाता हूँ, वो आपको कॉपी करना है। तो ये इंट्रोडक्शन आप लिख दो अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपरली। उसके बाद हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप समझेंगे। पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दो अपनी नोटबुक के अंदर, वीडियो को पॉज करो और कॉपी करके लिख दो। अभी हम समझेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले आप लिख दो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेक्स्ट हेडिंग पे अपनी बुक के अंदर लिख दो। तो आइए हम समझते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख देनी है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो एक्ट बना है, 1932 में जो एक्ट बना था उसके अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें दी है, और सेक्शन 4, तो पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डेफिनेशन को अच्छी तरह से। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कॉपी कर लो। सो हियर सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन दी है आपको। तो जनरली क्या होता है कि सेक्शन 1 जो होता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल देता हूँ, सेक्शन 1 के अंदर स्कोप दिया रहता है। स्कोप मतलब कि ये कब अप्लाई हुआ है या तो कहाँ पे अप्लाई होगा, दूसरा उसका मीनिंग, ठीक है, सेक्शन 1 में ये सारी चीज़। दूसरा सेक्शन 2 के अंदर उसके मीनिंग्स रहते हैं, पर यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर सेक्शन 4 के अंदर इसका मीनिंग दिया है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का मीनिंग आप देख सकते हो। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। सो हियर ये जो डेफिनेशन है वो साइलेंट है। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन, ऐसी रिलेशन है, ठीक है, कैसी रिलेशन है, वो दो
दो पर्सन के बीच में ऐसे रिलेशंस है, मतलब कि यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन्स, मोर देन 2 पर्सन्स, दो लोग साथ में मिलके पार्टनरशिप करते हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया ऐसे। क्यों पार्टनरशिप मोर देन 2 पर्सन करते हैं? बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, और बिजनेस को मैनेज करते हैं। मैनेज कौन करते हैं? पार्टनर्स करते हैं। मैनेज कौन करता है? बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम। तो ये पार्टनरशिप है जो 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलके बिजनेस करते हैं। उसमें से 2 में से या तो 2 से ज़्यादा लोग हैं वो बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, और या तो कोई 2 लोग उसको मैनेज करेंगे, या तो सभी में से कोई 2 लोग एक। तो ये जो है हमारा डेफिनेशन है वो साइलेंट है। मैनेज बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, राइट, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा, क्यों फर्म को मैनेज करते हैं? टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस क्यों करते हैं हम? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमें एंड लॉस पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हर बार बिजनेस के अंदर नहीं होता है, कई बार आपको लॉस भी बेयर करना पड़ता है। तो 2 से ज़्यादा व्यक्ति, 2 से ज़्यादा पर्सन एक साथ मिलते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं सबकी ओर से, या तो कोई भी 2 पर्सन उसको मैनेज करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या तो लॉस होगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे वो लोग करेंगे सारी चीज़ें? विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट। क्या करेंगे? एग्री हो गए, कॉन्सेंट हो गए, कॉन्सेंट, सबकी साथ में सर्वसम्मति होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कॉन्सेंट, विद द कॉन्सेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर दिस थिंग्स हैपेंड इन द पार्टनरशिप फॉर्म। So that is why partnership is a one kind of relation where 2 or more person supplement to each other and commence the business and share the whatever profit they earn in the future in the proportion, right? So ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये बिजनेस के पार्टनर्स करते। तो ये आपकी डेफिनेशन है, मीनिंग आप डेफिनेशन और मीनिंग वी कैन से आप लिख सकते हो, इसके अंदर मीनिंग आप लिख लो। उसके बाद एक और भी चीज़ है, ये तो हमने पार्टनरशिप की बात की, ठीक है, ये तो हमने पार्टनरशिप की बात की, पर उसके बाद जो आता है मीनिंग ऑफ पार्टनर एंड फर्म। पार्टनर क्या है और फर्म क्या है, वो भी चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। तो पहले लिख दो आप अपनी बुक के अंदर पार्टनर, मीनिंग ऑफ पार्टनर एंड फर्म। ओके, यहाँ पे पार्टनर का मीनिंग आपको दिया है। द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करके लिख दो। जो पर्सन बिजनेस के अंदर इंडिविजुअली एंटर होता है, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी रिलेशनशिप के अंदर इंडिविजुअली हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं? पार्टनर कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पहले आप इसको लिख दो पॉज करके। अभी यहाँ पे 2 पार्टनर्स है जो मोबाइल का बिजनेस करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एम एंड के। दोनों पार्टनर्स बिजनेस करते हैं मोबाइल का, साथ में मिल, ठीक है। दोनों मोबाइल की एजेंसी लेते हैं, मोबाइल की डीलरशिप लेते हैं। सभी जो भी कस्टमर आएंगे उसको मोबाइल बेचना है, उसके रिलेटेड उसको डिसीजंस लेना है। तो एम और के दोनों मिलकर एक मोबाइल का बिजनेस करते हैं। तो एम के ये दोनों हो गए पार्टनर्स, ठीक है। उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी आगे डिसाइड करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है, उसके बारे में वो आगे बिजनेस को ले जाएंगे। तो हम इसको एम के जो है, एम के वो एक पार्टनरशिप फर्म है, एम के मोबाइल, मान लो कि एम के मोबाइल,
तो वो क्या हो गया, एम के मोबाइल एक पार्टनरशिप फर्म हो गया। और इन दोनों की कॉन्सेंट से, एम और के दोनों की कॉन्सेंट से एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है पूरा, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। अब इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एम और के को, ये है बिजनेस के पार्टनर। तो एम और के दोनों मिलके दो पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसको नाम देंगे एम के मोबाइल्स, तो वो तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म हो गया, राइट। उसके बाद ये पूरा दोनों कॉन्सेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप, और एम और के दोनों क्या हो गए, पार्टनर्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपकी ये थी, द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप, द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। तो पार्टनर ये हो गया। दूसरा आपको दिया है फर्म का डेफिनेशन। फर्म क्या है, द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर इन कलेक्टिवली अ फर्म। कलेक्टिवली मैंने आपको समझाया था, जब एक साथ दो लोग मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कलेक्टिवली हो गया, एक से दो लोग, दो से ज़्यादा लोग करेंगे तो वो एक कलेक्टिवली, तो वो एक फर्म बन जाएगा। पर अकेला बंदा दोनों साथ में मिलके बिजनेस करे तो इंडिविजुअली वो क्या हो जाएगी, पार्टनर्स, और कलेक्टिवली फर्म। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपको एक क्लैरिफाई होना चाहिए, पार्टनर और फर्म। तो इन दोनों को आपको कॉपी करके अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो, बाद का मैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स समझाता हूँ आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद आप हेडिंग दे दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप अपनी नोटबुक के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और साथ में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स दी है आपको 1 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपरली लिख दो। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 हमें दिया है, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टनरशिप जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्रिएशन में आती है, एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएशन में आती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। ओके, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन एंड ओरल। जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, या तो रिटन में या तो ओरल में। अच्छा, आप लोग कोई ब्रदर साथ में बिजनेस करते हो तो ओरली आप लोग अंडरस्टैंडिंग करके उसमें कोई आप बनाते नहीं हो कुछ भी लिख के ऑन पेपर। पर अगर आप स्ट्रेंजर के साथ आप लोग बना रहे हो, कोई भी पार्टनरशिप कर रहे हो, तो उसमें रिटन एग्रीमेंट इज़ वेरी एडवाइजेबल। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट आपको लेना चाहिए। तो क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप किसके थ्रू होती है, या तो रिटन और ओरल, तो दोनों में से कोई भी एक। पार्टनरशिप इज इमर्ज थ्रू एग्रीमेंट, और वी कैन से पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, बट रिटन फॉर्म इज डिज़ायरेबल और एडवाइजेबल। हम क्या कह सकते हैं, रिटन फॉर्म जो है वो हमें ज़्यादा डिज़ायरेबल है। तो पार्टनरशिप इज क्रिएशन बाय द कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, प्रॉफिट का ही होता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जैसे हम स्टैंडर्ड 11 में पढ़ गए कि बिजनेस क्या है, राइट। बिजनेस इज अ लीगल एक्टिविटी टू अर्न अ प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पे भी बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप क्या है, एक प्रॉफिट अर्न करने का, जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा पार्टनर्स को, ठीक है। पर हर बार पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं होता है, कभी प्रॉफिट और वी कैन से लॉस, स्लैश में उसको डालना पड़ता है। जो भी प्रॉफिट होगा और लॉस होगा वो दोनों साथ में शेयर कर लेंगे फ्यूचर के अंदर। उसी तरह से एक पार्टनरशिप बनाते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म टू अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने का, उसको अर्न करेंगे और उसको साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन अमंग इज पार्टनर
इन देयर प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन। जो भी प्रोपोर्शन होता है, मान लो कि ए और बी दोनों साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी, तो दोनों ने, ये तो एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है ए बी, और जो भी प्रॉफिट होगा तो दोनों प्रॉफिट क्या करें, दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे कि 2:3 में प्रॉफिट वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मतलब कि अगर फर्म का प्रॉफिट 5 रुपीज़ हुआ है, फर्म का प्रॉफिट 5 रुपीज़ हुआ है, तो पार्टनर ए को 2 मिलेगा और पार्टनर बी को 3। अगर कोई पार्टनरशिप के अंदर प्रोविजंस नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया इन दोनों के कि जो भी 5 रुपये प्रॉफिट होगा तो हम दोनों क्या करेंगे कि या तो ए 2 लेगा, बी 3 लेगा, पर अगर पहले से कुछ डिसाइड नहीं है, अगर प्री डिटरमाइंड नहीं है, तो इक्वली एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविजंस के अंदर दिखा है, अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिफिकेशंस नहीं है, तो दोनों को इक्वली प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 रुपये यहाँ पे कितना 2.5। तो अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है तो इक्वली शेयर करना है प्रॉफिट को। अगर क्लैरिफिकेशन पहले ही कर दिया है उसने पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो क्या करना है, उसी रेशियो के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर उसको प्रॉफिट शेयर करके देना है। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। तो ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 आपका लीगल बिजनेस, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म या तो कोई भी बिजनेस हम किस लिए करते हैं, लीगल बिजनेस करने के लिए करते हैं। एज पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड टू डू अ लीगल बिजनेस। ठीक है, या तो कोई मोबाइल की डीलरशिप लेते हैं, या तो कोई बिजनेस हैंड ओवर करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो एक लीगल प्रोविजन एक एक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, अगर हम मान लो कि हम डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, तो ये एक पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, इंटरनल पार्टनरशिप है, पर ये पार्टनरशिप के अंदर ऐसा एक्ट में कोई नहीं दिया गया है कि आपको लीगल बिजनेस करना है, इल्लीगल बिजनेस नहीं करना है। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, लीगल बिजनेस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 एजेंट ऑफ ईच अदर। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि एजेंट ऑफ ईच अदर क्या है। ठीक है, एजेंट ऑफ ईच अदर। अभी मान लो कि यहाँ पे एक कंपनी है, राइट। कंपनी के ओनर्स कौन है, हु इज द ओनर्स ऑफ कंपनी। ओनर्स कौन है कंपनी के, शेयर होल्डर्स। कौन है, शेयर होल्डर्स। अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर बाय करते हो, तब आप उस कंपनी के क्या बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। क्या बन जाते हो, ओनर। पर आपको उस कंपनी के अंदर, आपने मान लो कि रिलायंस कंपनी का एक शेयर परचेज किया, तो आप उस कंपनी के ओनर बन गए, पर उसका मतलब ये नहीं है उसके अंदर आपको मैनेजमेंट डिसीजंस लेने का कोई राइट नहीं है। आपको उसमें मैनेजमेंट नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप बोलोगे जाके कंपनी के, भाई मुझे बिजनेस के अंदर अपने मैनेजमेंट करना है, मुझे डायरेक्शन देना है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। वो करने के लिए आपके पास 50% ऑफ शेयर्स या तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आपके पास कंपनी के होने चाहिए, तभी आप कंपनी के लिए आप कुछ मैनेजमेंट कर सकते हो या तो उसको डायरेक्शन दे सकते हो। एक शेयर से कुछ नहीं होता, तो एक शेयर के लिए आपको मैनेजमेंट डिसीजन नहीं दिया जा सकता। आप सिर्फ कंपनी के ओनर्स कहलाते हो। उसी तरह पार्टनरशिप में भी पार्टनर और पार्टनरशिप, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म। अब ये समझाने से पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि कंपनी और ओनर के बीच में जो होता है उसको हम एजेंट, डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स जो बिजनेस को मैनेज करते हैं,
और ओनर्स को बोलते हैं कि आप ये करो वो करो, ठीक है। तो डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, वो कोई प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको सिर्फ जो उतना उसका काम करते हैं, ठीक है, उसको कमीशन मिलता है। मतलब कि कंपनी और ओनर के बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं एजेंट। कंपनी और ओनर के बीच में जो रहते हैं डायरेक्टर्स, उसको हम बोलते हैं ओनर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पार्टनरशिप के अंदर आ जाते हैं पार्टनर और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म वो एक फर्म है और पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं। पर यहाँ पे मान लो कि पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट एक्स और वाई कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर्स आर देयर या तो 6 पार्टनर्स आर देयर, राइट। पर उसमें से 2 क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं फर्म को। ये सब की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 4 और 6 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स आर मैनेजिंग दिस फर्म, ठीक है। अब ये निकल जाएंगे, एक्स और वाई चले जाएंगे, तो उसके बदले में ए और बी दोनों भी बिजनेस को, ठीक है, इसकी और ऑन बिहाफ में बिजनेस को हैंडल कर पाएंगे। तो ये सभी लोग क्या हैं, पार्टनर्स जो है बिजनेस के अंदर एजेंट ऑफ ईच अदर। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। कि फिर से एक बार समझ लेते, कंपनी होती है, कंपनी के शेयर ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर बाय करते हैं और वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। एक शेयर खरीदने से कंपनी के ओनर्स तो बन जाते हैं, पर उसको कंपनी के मैनेजमेंट और डिसीजन में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। उसके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होना चाहिए, 50% और 51% से ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए, तो वो कंपनी के रिलेटेड कोई डिसीजंस ले सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे समझाई कि कंपनी और ओनर्स के बीच में जो काम करता है बंदा, डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट करता है बिजनेस का ओनर्स के साथ, तो इसको हम बोलते हैं एजेंट। और यहाँ पे हम पार्टनरशिप के अंदर देखें, पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों सेपरेट हैं। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, 4, 6, 10, 20 जितने भी होते हैं, तो उन सभी की ओर से 2 पार्टनर्स एक्स और वाई में हैंडल करते हैं, और वो 2 निकल जाते हैं तो फिर कोई 2 नए आते हैं, वो बिजनेस को ऑन बिहाफ में हैंडल करते हैं। तो ये है एजेंट ऑफ ईच अदर, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4। सो नंबर 5, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने हमारे होना चाहिए, सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर बताया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म, मैक्सिमम नंबर 50 पार्टनर्स। 20 पार्टनर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, पर ये तो कंपनीज एक्ट ने दिए हैं, ठीक है। और अभी तो हम फॉलो कर रहे हैं कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमें कौन से नंबर ऑफ पार्टनर्स से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो हमें नंबर्स ऑफ पार्टनर 50 मैक्सिमम नंबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को, और 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म 50, सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013। नंबर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6 के अंदर आपको दिखाया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, इसके अंदर ये कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप एक्ट के तहत कोई बिजनेस करता है, ठीक है, और कितनी भी अपने पैसे लगाता है और कैपिटल लगाता है, और बिजनेस के अंदर इन केस अगर कोई भी लॉस हो गया, बाय चांस कोई लॉस हो गया, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसे देने पड़ेंगे। मान लो कि मैं यहाँ पे अगर आपको बोलता हूँ, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, राइट, और मैंने बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये लगाए, 50,000, तो ये मेरी लिमिटेड लायबिलिटी हो गई। ये मेरी लिमिटेड, क्यों कि मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, अगर रिस्क होगा तो मुझे 50,000, अगर लॉस जाएगा तो मुझे 50,000 का ही लॉस जाएगा, तो वो ये मेरी लिमिटेड लायबिलिटी है। पर हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये केस 1 है। केस 1 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने 50,000 लगा है बिजनेस के अंदर, और इन केस मीन वाइल द ईयर मुझे कोई लॉस जाता है, तो मुझे मेरे 50,000 रुपये ही जाएंगे बिजनेस के अंदर। तो ये मेरी लिमिटेड लायबिलिटी, चलो कोई बात नहीं, कोई 50,000 गए। पर ईयर इन केस नंबर 2, सेकेंड केस, अगर मैं पार्टनरशिप के अंदर हूँ, पार्टनरशिप फर्म के अंदर हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे तो सबने अपनी अपनी कैपिटल लगाई है। मान लो कि मैंने बिजनेस के अंदर, ये सेकंड केस के अंदर मैंने 50,000 रुपये की कैपिटल लगाई है, ठीक है। 3 पार्टनर है बिजनेस के अंदर, और बिजनेस को पूरे साल के अंदर लॉस गया अभी लॉस गया बिजनेस को 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपए का लॉस बिजनेस के अंदर गया, तो 50,000 तीनों पार्टनर्स की क्या है, लाइबिलिटीज है। ये 50,000 का लॉस गया, मैंने 50,000 तो निकालते, और बाकी के 50,000 जो है तो मुझे उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। अगर बिजनेस के अंदर कोई भी लॉस होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पास कुछ भी प्रॉपर्टी है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी, लैंड एंड बिल्डिंग या तो स्कूटर, ठीक है, या तो गोल्ड, कुछ भी है, सभी चीज़ बेच के मुझे अपनी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस ऑब्लिगेशंस फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी when the firm does not have sufficient assets to pay the liabilities। अगर फर्म के पास लाइबिलिटीज़ पेड करने के पैसे नहीं हैं तो ये पार्टनर्स को उसको पैसे देने पड़ेंगे, बिजनेस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटर के अंदर तो लिमिटेड हो गई लाइबिलिटी, पर पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड हो गई। अब ये 50,000 का लॉस है, तो हम दो या तो 3 पार्टनर या तो 2 पार्टनर है, ए और बी, दोनों पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, तो ये तो मेरा 50,000 गया तो गया ऊपर से, पर उसमें साथ में मेरे जो 1 लाख का लॉस हुआ, उसी 50,000 के अंदर 50,000 के अंदर मुझे इक्वली लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वली लॉस को 25,000, या तो आप ऐसे कर सकते हो 1:1, 50,000 इंटू 1/2, तो 25,000, और 50,000 इंटू 1/2 ए और बी का, तो ये 25,000 और ये 25,000। तो ये लॉस हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी बिजनेस को देना पड़ेगा। तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो गई, बिजनेस के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 7, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के ओनर्स कौन होते हैं, पार्टनर्स, और वही पार्टनर्स को मैनेज करते हैं। पार्टनर्स ही मैनेज, सारे पार्टनर्स बिजनेस फर्म को मैनेज करते हैं, या तो कोई 2 पार्टनर्स, ठीक है, या तो 2 की और, या तो सभी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, और एनी वन ऑफ देम। तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप की भी पार्टनर्स की होती है, मैनेजमेंट भी पार्टनर्स का होता है। तो होप्स आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। अगर ये बेसिक आप समझोगे तो ही आगे जा पाओगे इसके अंदर। ओके, सो राइट नेक्स्ट हेडिंग, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, तो पहले ये कॉपी करो, उसके बाद इसका मीनिंग लिखो। अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अ रिटन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जैसे मैंने आपको पहले समझाया, जब भी कोई पार्टनरशिप होती है तो उसके अंदर रिटन चीज़ ज़्यादा एडवाइसेबल है। अगर आप रिटन एग्रीमेंट करोगे बिजनेस के अंदर तो वो ज़्यादा एडवाइसेबल रहेगा। तो पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं, रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो ये मीनिंग आप लिख दो पहले, उसके बाद डीड कैसे बनती है पार्टनरशिप, हाउ पार्टनर्स आर गोइंग टू प्रिपेयर एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप डीड, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा।